Dear students, this is the question from problem set 3 algebra. This is question number 11. It says that if first term is given, that is t1 is a, and the last term, that is t of n, is c, and the second term t2, that is b. If these information are given, then prove that sum of all the terms equals to a plus c into b plus c minus 2a upon 2 into b minus a. This is what we have to prove. So let's solve. So these things are given, and from this we know this formula. This is formula. We'll put the value. T of n they have given as c. A is a. Okay. Plus n is how much? N we don't know. D. What is D? How much is common difference? So common difference can be T2 minus T1. T2 is B minus T1, that is A. Okay. So D we have B minus A. So here we can write B minus A. So this gives us, this goes this side, so C minus A, and B minus A comes down. So here it is n minus 1. Let the n be there, and minus will come this side because plus. Okay, there is only 1 here, so I'll take it 1 upon 1. We can write. Next step, C minus 1 into C minus A, same, plus B minus A into 1, same. This into this, B minus A equals to n. So minus A becomes minus 2A. C plus D, we can write B plus C upon B minus A equals to n. So this is the value of n we got from this. Okay, अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू यूज करेंगे Sn ढूंढने के लिए. हमको ढूंढना Sn है. तो Sn का फॉर्मूला क्या है? n upon 2 t1 plus tn फॉर्मूला. कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गिवन है. tn दिया हुआ है, t1 दिया हुआ है, तो हम Sn के फॉर्मूले में इसको यूज करेंगे. Sn इक्वल्स टू n कितना ढूंढा हमने? समथिंग अपॉन समथिंग. उसको लिख दो ऐसे ही, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a, और बड़ा अपॉन ये 2 इंटू t1 प्लस t1 है a और tn है c, तो a प्लस c. कोई टेंशन नहीं. ओके. नेक्स्ट, इसने इसको दबाया, पुश किया, तो ये
ये इसके पास मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में तो b प्लस सी माइनस 2a अपॉन ये आ गया यहाँ पे b माइनस ए इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, ओके। और ये ऐसे ही a प्लस सी अपॉन 1। अब इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। तो आप देखेंगे a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी इंटू बी माइनस 2 इंटू बी माइनस ए, सो प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड। इजी था, गुड। Dear students, this is the 13th question of problem set 3 algebra. It says if m times the mth term, जैसे nth term होता है तो हम tn लिखते हैं, यहाँ पे m term है तो tm लिखेंगे। m times मतलब m का मल्टीप्लाई, m times the mth term equals to n times the nth term। तो ये दो चीज़ें इक्वल हैं, ये गिवन है। फिर बोलते हैं प्रूव करो कि दोनों का जब प्लस किया जाएगा, दोनों टर्म का प्लस किया जाएगा तो ज़ीरो आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। मतलब mth टर्म m टाइम्स, nth टर्म्स n टाइम्स, दोनों के m प्लस nth का टर्म का इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर वो प्लस करते हैं तो दोनों के टर्म को, तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए। So let's solve. You may find that this question is difficult, no, but you got to be very cautious. Go slow, take your time, and then solve. Yes, it is not that easy for average and below average student because it needs focus, concentration, and alertness. So let's solve. They have given m times the nth term. T of m equals to T of n, but m times. So m and n times. So n. Clear? This is given. Okay. Now we know the formula. We know the formula that T of m equals to a plus n minus 1 नहीं, यहाँ पे m यूज हुआ है तो यहाँ पे m आएगा, m minus 1 इंटू d। ये हो गया एक चीज। दूसरा फॉर्मूला हमें पता है कि T of n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये दोनों भी क्या है? फॉर्मूलास। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं इन चीजों को बराबर कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो इसकी वैल्यू की जगह पे मैं ये लिखूंगा a प्लस m माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये तो दोनों के टर्म का इक्वल हो गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया है m टाइम्स n टाइम्स, जैसे यहाँ पर है, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा m, ठीक है, और ये n यहाँ पे है। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे। नहीं तो क्या करते हैं, पहले इसको इस तरफ लेके आते हैं,
therefore m, ये ऐसे ही रहने दो, माइनस ये पूरा टर्म इस तरफ आ रहा है तो माइनस हो गया, प्लस में था तो मैं लिखूंगा n अब थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करेंगे, m इंटू ए एम ए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, m में हो गया, प्लस m इंटू m माइनस वन इंटू डी, ये अलग चीज हो गई, ठीक है। इसी तरह माइनस n इंटू ए, माइनस इंटू प्लस माइनस n माइनस वन n इंटू n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये एक अलग चीज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इसको और इसको साथ में कर दो, इनकी जोड़ी जम गई है, am माइनस an, बाकी जैसे था वैसे ही, प्लस m इंटू m माइनस वन इंटू डी, ये माइनस ये तो यहाँ आ गया है, ठीक है, ये यहाँ पे है तो अब यहाँ पे सिर्फ ये बचा n इंटू n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि स्टेप्स किए कैसे गए हैं। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया इक्वल फॉर्मूले के हिसाब से। दूसरा स्टेप m मल्टीप्लाई हुआ था तो m लिख दिया, इक्वल्स टू के इस तरफ n मल्टीप्लाई हुआ था तो n लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में m मल्टीप्लाई हुआ a से और अंदर की चीज़ से, तो a से हुआ तो ma बन गया प्लस m इंटू m माइनस वन इंटू डी, मतलब उसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही रखा। उसी तरह n का मल्टीप्लिकेशन हुआ। उसके बाद जो स्टेप दिख रहा है am माइनस an, मैंने a और n को साथ में कर दिया, बची हुई चीज़ों को साइड में लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते। इसमें से मैंने a कॉमन ले लिया, कॉमन मतलब सेम, अंदर बचा m माइनस n, क्योंकि a तो बाहर आ गया, प्लस मल्टीप्लाई किया m इंटू m, m स्क्वायर, m इंटू माइनस m, m होगा माइनस का साइन, 1 इंटू m इंटू d, n इंटू n n स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस और n, ओके, इंटू d, तो माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू d। नेक्स्ट स्टेप में a इंटू m माइनस n ऐसे ही रहने दो, प्लस d दोनों जगह पे सेम है तो उसको बाहर ले लो, यहाँ पे d सेम है तो ये दो पार्ट में d सेम होने की वजह से कॉमन ले आए, तो अंदर बचा
एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस एन, ये अंदर बच गया। ठीक है, ए कॉमन लिया एम माइनस एन प्लस इसमें से और इसमें से डी कॉमन था तो डी बाहर लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया, एम इंटू एम एम स्क्वायर माइनस का साइन एम इंटू वन एम, वैसे यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस सो एन। नेक्स्ट स्टेप में ये सेम आया, इसमें से और इसमें से डी कॉमन था तो बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर जो बचा था वो लिख दिया। अब ये ब्रैकेट खोल रहा है तो माइनस एन स्क्वायर और ये माइनस एन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तब तक आप इस स्टेप को ठीक से देख लो। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं। ये तो ऐसा ही रहेगा, इसके अंदर से स्क्वायर वाली चीजों को साथ में कर दो, प्लस डी बाहर रहेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन माइनस एम प्लस एन। और एक चीज उन्होंने बताया था कि उन दोनों का जब प्लस करेंगे तो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से जब सॉल्व करते जा रहे हैं तो यहाँ पे जब ये समथिंग इक्वल टू समथिंग था तो ठीक था, और जब ये यहाँ से उठ के यहाँ है तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इक्वल टू के बाद 0 0 है। यहाँ पर भी 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, राइट इट सेम प्लस बी, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे, सो m प्लस n इंटू m माइनस n माइनस m ब्रैकेट में डाल दो m माइनस n कर दो। ऐसा क्यों करना है, तो हमें m माइनस n कॉमन मिल जाएगा। माइनस n प्लस n लिखोगे तो वो कुछ काम का नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको माइनस साइन में कन्वर्ट कर दिया, माइनस बाहर लिखे, तो ये चीजें कॉमन मिल जाएंगी। m माइनस n इक्वल्स टू 0। ठीक है, therefore a m माइनस n प्लस b m प्लस n भी आप देखोगे कि ये टर्म में और ये टर्म में ये वाला कॉमन है m माइनस n। जो चीज कॉमन होती है हम बाहर ले लेते, चलो ले लेते बाहर, सो b इंटू m माइनस n। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों में यहाँ पे भी तो है, यहाँ पर भी तो कॉमन है, एक ये टर्म दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, तीनों जगह पे m माइनस n कॉमन है, तो m माइनस n को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं कैसे बाहर ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, कॉमन लेते वक्त बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ये ऐसा ही है,
ये प्लस डी एम प्लस एन माइनस एम माइनस एन इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन लिया था? एम माइनस एन। कहाँ आ गया? बाहर। एम माइनस एन बाहर आ गया, अंदर ये चला गया। इसमें से ए वहां पर ही है, बी वहां पर है, ये वहां पर है, माइनस एन वहां पे है, एम माइनस एन बाहर लिया तो ये निकल गया और यहाँ बच गया 1। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब वो अकेला वहां पे अकेला था, बाहर आ जाएगा तो वहां पे 1 बचेगा। तो हमें मिलता है m माइनस एन और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमें दो फैक्टर्स मिल गए, एक ये वाला, दूसरा इनटू ये वाला। तो ये पूरी चीज का पूरा, यानी जब nth टर्म और nth टर्म प्लस किए गए तो उसमें से हमें दो फैक्टर्स मिले, वो ये हैं। दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 है, तो m माइनस वन डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, m माइनस एन डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है m और n बराबर है, तो वो 0 नहीं हो सकते। दूसरा बचा ये वाला फैक्टर, therefore a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो भी वही रहेगा। ठीक है, एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों फैक्टर इक्वल्स टू 0, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज m इज इक्वल टू n, दैट इज गिवन। तो बचा ये इक्वल्स टू 0। अब ये है क्या? ये दोनों टर्म का प्लस है, therefore इसको इक्वेशन 1 ले लो, therefore m प्लस n टर्म इक्वल्स टू 0, क्योंकि m प्लस n टर्म हमने लिखा हुआ है, m टर्म n टर्म दोनों को प्लस किया, तो प्लस करने के बाद ये देखो हमने वहां से यहाँ लाया तो ऐड ही कर दे। सो दिस इज द प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। Clear? Dear students, now the next question and the last question of the problem set 3 algebra, it says that अगर 1000 रुपया डिपॉजिट किया गया 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है हर साल उतना ही परसेंट जो भी अमाउंट होगा उस पर डिसाइड किया जाएगा इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि अगर 1000 रुपया डिपॉजिट किया गया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो इंटरेस्ट तैयार हो रहा है हर साल, वो साल के एंड में एपी है क्या, मतलब जितने भी इंटरेस्ट तैयार हो रहे हैं हर साल, तो वो एपी फॉर्म में है क्या, पहला तो चेक करो। और अगर हाँ वो एपी में है तो पता करो कि 20वें साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब जो इंटरेस्ट हर साल 10% मिल रहा है वो 20वें साल में कितना होगा, ये पता करके बताओ। तो लेट्स एक्सप्लेन। They have given simple interest, we have to find, and the formula for finding the simple interest is PNR upon 100,
ये एक फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, तो सारी चीजें दी गई हैं, सिर्फ लॉजिक यूज करके वैल्यूज डालनी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आते ही हैं। सो दिस वाज द फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इंटरेस्ट फॉर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, तो पहले ईयर का, क्योंकि हमें एपी चेक करना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर वो सारे इंटरेस्ट एपी में है क्या, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना, फॉर्मूला है ये। तो इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर इज, सबकी वैल्यू मैंने डाल दी, पी मींस 1000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट था, एन मींस एक साल, आर मींस 10%, परसेंट मतलब 10/100, क्लियर। 0 0 कट 0 0 कट 100 into 1 becomes 100। तो दूसरे साल में क्या होगा, 1000 into 2 into 10/100 हो जाएगा, 0 0 कट 100 into 2 200। इस तरह तीसरे साल में 300, चौथे पांचवें और छठवें साल में 400 500 600। ये इस तरीके से हमें इंटरेस्ट हर साल का मिल जाएगा और आगे मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब डी 100 है सबके डिफरेंस से, तो ये एक एपी में है, मतलब सारे इंटरेस्ट एपी फॉर्म में है। तो अगला चीज उन्होंने क्या बोला, अगर वो है तो 20वें साल का इंटरेस्ट ढूंढो। तो इसका मतलब जो 20वें साल यानी T20 में जो इंटरेस्ट है वो फाइंड करो। तो फॉर्मूला है टी ऑफ एन ढूंढने का कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह पे 20, 100 प्लस 100 क्या है ए, 100 प्लस एन माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1, तो 19 हो गया। डी इज 100, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। ये जितने भी सर्कल मैंने किए हैं ये फिल इन द ब्लैंक से आपके टेक्स्ट बुक में, ये सर्कल जो मैंने किए, बीच में जो पार्ट है वो कैलकुलेशन। तो 100 comes here, 20 minus 1 19 into 100, so this gives you 1900, 1900 plus 100 becomes 2000. So therefore the amount of the simple interest after 20 years will be 2000 rupees. Don't forget to mention rupees. That's it. Thank you very much for your cooperation, and if you find anything while I'm explaining you or I'm solving on the board, anywhere, in any case, if you find any question or any sign, any mistake, any type of silly mistakes, please excuse me, because I am the only person who is handling the camera, board, calculations, number of questions, timing, everything. So, human error, but I'll try my best to give you the best.